ज़रा आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिए चलते हैं, वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे आज ये अहसन इकबाल साहब के साथ वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने स्टूडेंट्स ने क्या सवालात किए और ऑक्सफोर्ड यूनियन में फॉर्म 47 की हुकूमत को किस तरीके से नदामत का सामना करना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि ये नदामत जनरल आसिम मुनीर साहब की नहीं है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की नदामत है। और इनकी हरकतों की वजह से जनरल आसिम मुनीर साहब की और ये इलेक्शन चोर जो टोला है इनकी वजह से, इलेक्शन कमीशन की वजह से, काजी फाइज की वजह से पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है। और क्योंकि ये तो चले जाएंगे, इनका तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान पे जो टैग लगा है वो है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई डेमोक्रेसी नहीं है। क्या कहते हैं स्टूडेंट, जरा सुनिए। Respect of the people's mandate and rule of law. So let's start with respect to the people's mandate. In February 2024, the military establishment in Pakistan sought to eliminate Imran Khan's party from politics, using lawfare to deprive the party of its election symbol, relied on by voters who cannot read. Despite this, the party was on track to secure a 2/3 majority according to exit polls, following which blatant poll rigging, as evidenced by images of tampered vote count forms, transformed the incumbent government's 17 seats into 75, allowing them to form a government. The consequence of such sham elections has been a surge in political instability, with the incumbent government being viewed as illegitimate. Now, I suspect the proposition will try to argue that Imran Khan's party epitomizes exactly what is wrong with liberal democracy, that it encourages instability and protest in the global south. But I want you to remember this example, that the root of this instability is not liberal democracy, but it is a concerted effort to impede the mandate of 250 million people by a powerful elite. And Pakistan isn't unique in such an experience. You mentioned Egypt. Military dictator Sisi in Egypt, who has jailed and killed hundreds of dissenting civilians and political opposition after uprooting democracy over 10 years ago, has destroyed the Egyptian economy, despite receiving billions of dollars from allies. Moving on to rule of law, a fundamental pillar of liberal democracy, as I'm sure we can all agree. Pakistan's history is rife with political imprisonments, and indeed Mr. Ahsan Iqbal's own party has regrettably suffered the consequences of being on the wrong side of Pakistan's military establishment. But since his ouster from office in 2022, Imran Khan has faced over 200 frivolous cases, ranging from terrorism, murder, and the legitimacy of his own marriage. Over the last year, both the United Nations and Amnesty International have called for Imran Khan's release, citing the sham cases leveled against him, the complete absence of due process with the lack of a fair trial, and inhumane prison conditions. Given this, I hope that Mr. Iqbal's government will give due respect to democratic values and release Imran Khan from illegal incarceration. ये थे स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड यूनियन में। उन्होंने सादा जुबान में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि एक इलेक्शन चोरी किया गया, इलेक्शन सिंबल छीना गया, इमरान खान पे 200 मुकदमात कायम किए गए, झूठे मुकदमात में झूठी सजाएं दी गई, अक़वाम मुत्तहिदा मुतालबा कर रहा है उनको रिलीज़ करने का। और इस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रिजीम और अहसन इकबाल की पार्टी यानी कि PMLN, मुस्लिम लीग नवाज, ये लिबरल डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेसी के तमाम नॉर्म्स को ख़त्म कर रहे हैं। और ये हारी हुई जमात है। फॉर्म 47 के तहत इन्हें ज़बरदस्ती इक़्तिदार मिला और ये 250 मिलियन पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं, ये उनके हकूक़ पे डाका डालकर बैठे हैं। और जिसकी वजह से उन्होंने मिसाल दी मिस्र की, और उसके बाद उन्होंने कहा वहाँ पे भी इकॉनमी का सत्यानाश हुआ और पाकिस्तान में भी इकॉनमी का सत्यानाश हो गया है। और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सिक्योरिटी नहीं होगी, अमन अमान नहीं होगा और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ख़ास तौर पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, मुंतखब हुकूमत नहीं होगी, तब तक ना ही सियासी इस्तेकाम आ सकता है और ना ही इकॉनमी बेहतर हो सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मस्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, और ये सारी चीज़ें कही गई। आगे एक और स्टूडेंट ने एक और बात की और उन्होंने कहा
काफ़ी एहसास दिलाने की कोशिश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। क्या सवाल था ज़रा सुनिए, और एहसन इकबाल साहब सिवाय इसके के नदामत के, शर्मा के, मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं, और बाकी सारा हॉल जो है वो हंस रहा था। क्या हुआ? We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ehsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ehsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. उन्होंने कहा कि सिर्फ 17 सीटें जीती हैं 272 में और हुकूमत कर रहे हैं, और इसके अलावा और फिर हमला कर रहे हैं जमहूरियत पे और मुसलसल हमरावल हैं। ये सूरत हाल है जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की, और यही तलबा पाकिस्तान में भी तलबा का यही शऊर है, तलबा और तालिबात का, और वो भी जहाँ जाते हैं, खा जन आसम मुनीर साहब जाएँ, खा वो DGISPR जाएँ या फिर मरियम साहिबा जाएँ, जो जहाँ जाता है वहाँ पे उनको यही सुनने को मिलता है। अब आते हैं बजाय इसके कि सारी सूरत हाल पे बेहतरी लाई जाए, बेहतरी नहीं लाई जा रही, बल्कि जजिस को अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जाली निज़ाम पे शिकंजा बरकरार रहे, और बजाय इसके कि इसको ठीक किया जाए। क्या किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कि जो आइनी बेंच के अफराद हैं, आइनी बेंच के, मैं तो गैर आइनी बेंच कहता हूँ क्योंकि गैर आइनी तरमीम के नतीजे में एक सो कॉल्ड आइनी बेंच बनाया गया है जो कि गैर आइनी बेंच है, और ये गैर आइनी बेंच के सामने डिफेक्टो कह लें जी आप, ज़बरदस्ती का बना हुआ डिफेक्टो आइनी बेंच जो है वो उन ऑनरेबल जजेस को क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी अपना कैरियर ख़राब कर रहे हैं। हालांकि क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक स्टांस लिया जाए, एक रूल ऑफ लॉ की बात की जाए, डेमोक्रेसी की बात जाए, ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, तो मेरा ख्याल है कि उनके इन ऑनरेबल जजेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था अगर ये स्टैंड ले लेते, लेकिन नहीं लिया उन्होंने। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि अब उन आइनी बेंच के सरबराह में बाकी जजेस को भी ये कहा जा रहा है कि आप हमारे हक़ में फ़ैसला दें, और हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपको एक्सटेंशन देंगे। अब इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वही लॉलीपॉप जो काजी फाइल ईसा को दिया गया था। काजी फाइल ईसा साहब को भी एक्सटेंशन का लॉलीपॉप दे दे के आइन को बर्बाद कर दिया, अदलिया को बुलडोज कर दिया गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया और इलेक्शन चोरी कर लिया गया। और उसके बाद काजी साहब की पुश्त पर लगाए उन्होंने छतरौल की और उन्होंने उठा के बाहर फेंका, टिश्यू पेपर के इस्तेमाल हुए, और यही आइनी बेंच के जो अफराद हैं इनके साथ भी यही होना है, क्योंकि इन्हें कहा जा रहा है कि आप फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पे ठप्पा लगा दें, और ठप्पा लगा देंगे तो हम आपको एक्सटेंशन देंगे, और एक्सटेंशन देंगे यानी कि आपको मज़ीद नौकरी, आपको हम कहेंगे कि आप हमारी मज़ीद नौकरी कर सकते हैं। तो ये ऑफ़र किया जा रहा है। हामिद खान साहब ने इसके बारे में बाकायदा तौर पे बात की है, वो भी ज़रा सुनिए। चंद जजेस चूँकि आजकल मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुन रहे हैं, तकरीबन कंक्लूजन के करीब है। मैं कल से बहस कर रहा हूँ, मंडे को कंक्लूड करूँगा। जानबूझ के इन्होंने उससे पहले ये शोशा छोड़ा है, यानी एक बेट फेंकी है उन जजेस को जो 7 जजेस ने फैसला करना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए उन्होंने उनको एक बेट दी है कि भाई आप हमारी मर्जी के मुताबिक चलते रहेंगे, हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे, आप आइन को रद्द करेंगे तो फिर हम आपको 5-5 साल और दे देंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका जो सरबराह है इस वक्त मीनुद्दीन, वो तो दिसंबर में रिटायर होने जा रहा है। तो इसलिए ये जानबूझ के ये बेट फेंकी गई है उनसे अपनी मर्जी का फैसला लेने की खातिर। दाना फेंका जा रहा है जजिस को कि जनाब आए और हमारे हक में फैसले दें और मौजें करें और मज़ीद नौकरी करें। तो ये सब कुछ हो रहा है जी, और ये सिचुएशन है, ये हमारे हालात व वाक़यात हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान कुछ एहसास करने के लिए तैयार नहीं है। उधर मरियम साहिबा को नोटिस हो चुका है जी लाहौर हाई कोर्ट से, और अखबारी इश्तिहारात में जो 60 सफ़ात का इश्तिहार, 301 तस्वीरें मरियम साहिबा की और तकरीबन 35 तस्वीरें मियाँ साहब की, उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, क्योंकि ज़ाती तशहीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, ज़ाहिर कोई नहीं सुनेगा।
और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी ज़रूर निकलेगा। फिल वक्त इतना ही। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। बैरिस्टर सलमान अबूजर नयाजी साहब थे उनके वकील, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अहमद खान भच्चर, वो गए थे और उन्होंने इस बात का बताया जी कि नोटिस इशू हो चुका है। तो देखते हैं कि क्या बनता है।